Welcome to We Are Listening, where we bridge the gap between wellness seekers and providers. In today's episode, we delve into a crucial yet often under discussed realm of wellness, women's health and sexual health. Guiding us through this vital conversation is Dr. Tanu Gupta, a visionary in the health and wellness field and the founder of Peachex. Welcome, Dr. Tanu. Thank you so much, Pulkit, for the warm welcome and the introduction. I'm very, very happy to be on board today and on this episode of sexual wellness and women health, which is the most important topic to be discussed. And it's an emerging thing because right now we're on the verge of all the mental health shattering and so many divorce, so many relationship issues, so many things all around women because women nowadays have come out of their homes. They're very independent. They started working. They started taking care of their health, and lot many things are emerging because of that. So I'm Agreed. sure we'll be able to do some justice. People would love our episode, and they would be able to get what they wanted out of our conversation. Totally looking forward to it. And listeners, please stay tuned. We are going to be uncovering some of these topics, aiming to empower you guys with knowledge and practical insights to help you make informed health decisions. So, Dr. Tanu, let's dive into our conversation. Of Um, course. my first question to you is, let's understand about your background. How has your personal journey been? How have you made, these topics? How have you been yourself been vocal around these topics and that has enabled your life? My introduction to you is I'm a physician. I've done my residency in internal medicine. I am a diabetologist after that. In my OPDs, usually a lot of couples would come and they would discuss with me, females would discuss with me, we are not able to be sexually compatible. Infertility is a big problem that is arising because of that. There are so many hormonal issues that are happening around that. So, मेरी OPD में it was a very common thing to have these patients. आई वाज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, तो उसके अराउंड ही मुझे था कि मैं एक ऐसा ब्रांड शुरू करूं जो प्रिवेंटिव मेडिसिन वाइटलिटी की बात करता हो, मेंटल हेल्थ की बात करता हो, जो लोगों को एक लाइफस्टाइल दे, मतलब जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में, हम बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करें। तो दीज टॉपिक्स आर नॉट डिस्कस्ड, हम लोग इस बारे में बात नहीं करते, ना अपने Mhm. दोस्तों से बात करते हैं, ना अपने डॉक्टर से ठीक से बात करते हैं, जबकि डॉक्टर्स आपसे बात करना चाहते हैं। डॉक्टर्स को कोई इश्यू नहीं है। अगर आप आज गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो और बोलते हो कि मेरे को सेक्सुअली ये इश्यू आ रहा है, तो वो देखेंगे हार्मोनल इश्यू है, कोई एंजाइटी है, कोई रिलेशनशिप इश्यूज हैं, दे विल टॉक टू यू। पर बात कौन करे? कोई बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि वो प्रॉब्लम नजर नहीं आती। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, या तो हमारे पार्टनर की गलती है, या हम बहुत बिजी हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है उस चीज को लेके, कि मतलब Mhm. लोग सोच नहीं पाते कि ये गलत है कि ये सही है। ऑब्वियसली इसका इफेक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे जरूर पड़ता है। सेक्सुअल हेल्थ इज इक्वल टू मेंटल हेल्थ। बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो इन रिलेशनशिप, तो दोनों पार्टनर्स की इंटीमेसी में, उनके रिलेशनशिप में बहुत असर पड़ता है। आप सजना संवरना बंद हो जाओगे। आप अपने अपने वेट पे कभी ध्यान नहीं दोगे। अब अगर मुझे पता है कि मैं सेक्सुअली एक्टिव हूँ विद माय पार्टनर, आई वुड वांट टू लुक गुड, आई वुड वांट टू लूज वेट, आई मीन मैं न्यूट्रिशनली भी अच्छा रहना चाहूंगी। लेकिन अगर आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं है, या आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आ गई है कि हमें करना ही क्यों है, इतना ही कर लिया तो बहुत है ना, क्या जरूरत है, तो ना आप अपने आप को न्यूट्रिशनली बिल्डअप करोगे, ना फिजिकली अच्छा दिखना की कोशिश करोगे, और फिर ऑब्वियसली दोनों पार्टनर्स के बीच में एक रिलेशनशिप इशू शुरू हो जाएगा। दैट्स वेयर द डिवोर्स और मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ऑल दीज थिंग्स विल स्टार्ट। तो मेरा पर्सपेक्टिव इसमें बस इतना ही था कि मैं इस सीट पे बैठी हुई हूँ बहुत सालों से, एंड आई एम सीइंग सो मेनी पेशेंट्स कमिंग अप, सो मेनी रिलेशनशिप इश्यूज। हम साइकेट्री में भी पोस्टिंग करते थे, तो बहुत सारे लोग आते थे इसी चीज के बारे में डिस्कस करने के लिए। आप जितने साइकेट्रिस्ट से बात करोगे, रिलेशनशिप इशू का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो सेक्सुअल हेल्थ को बताते हैं। जब कपल्स Okay. आते हैं उनसे डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर हम इसके बारे में खुल के बात कर पाए, या एटलीस्ट जो लोग जैसे मैं और पुलकित आज एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, अगर एटलीस्ट हम सुन के ही हम कुछ फॉलो कर पाए, दैट विल क्रिएट अ चेंज। यही मैं और पुलकित चाहते हैं, और मेरा ब्रांड भी चाहता है कि हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें बताएं, कुछ बेसिक लाइफस्टाइल चीजें, कुछ बेसिक सोल्यूशन टू इट, और मे बी अवेयरनेस टू इट, कि ये सही नहीं है।
तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा फिर कि हाँ एक्सेप्ट कर पाना, अच्छा ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे इसको सही करना है, न्यूट्रिशनली कैसे करना है, मेंटली कैसे करना है, डिस्कस कैसे करना है ना, इसको एक प्रॉब्लम समझ के फिर आगे इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि यार अब तो 40 के हो गए या बहुत ज्यादा बिजनेस चल रहा है, अब क्या जरूरत है इसको करने की, या अब टाइम ही नहीं है, अब तो बच्चे भी हैं, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कंसिडर्ड कि हाँ प्रॉब्लम तो है, अब इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, ऐसा कुछ। This brings me to my next question, actually. And though I'm yet to take that plunge in my own life, but I have friends around who are getting into those conversations of marriage and at a place, courtship period where they're going to get married in the next 3, 4 months. Yes, But as far as I am aware and I've experienced those conversations, the topic of sexual compatibility is not discussed at all. सी आई We would either ask about कितना कमाते हो, how deep is your pocket, घर कितने हैं, प्रॉपर्टी कितनी है, पेरेंट्स क्या करते हैं ऑन बोथ द साइड्स, लड़के की हाइट वेट कितनी है, क्या है, लड़के सेम फॉर गर्ल एज वेल, द फिजिकल अपीयरेंस गोज इन, एंड a lot of other things are being talked, but I've never heard anybody talk about कि किसी ने का sexual compatibility के ऊपर बात की हो. Because if I understand correctly, if one partner is highly sexually active and other partner is not, I don't think so that's a match made in heaven. नो इट्स नॉट अ What मैच, all the Pandit ji would say. दैट इज एक्चुअली अ रूट कॉज ऑफ डिवोर्स लेटर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लेटर हैपनिंग अराउंड। So ट्रू। what could be those conversation initiators, the girls and guys today हाँ can use to start the conversations before the marriage itself? We'll of course discuss after marriage, but before the marriage, what can, singles out there use to start the conversations around this? बिल्कुल, ये रेज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई मीन ये बहुत जरूरी है, अगर आप आज इस पे बात कर रहे हो तो आप बहुत सारे यंगस्टर्स की हेल्प कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे हो जिनको बाद में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो बेसिकली क्या है ना कि पहले तो दो लोग जो मिल रहे हैं ड्यूरिंग दैट मैरिज प्रोस्पेक्ट, दे नीड टू बी ऑन द सेम पेज व्हेन दे डिस्कसिंग इट, कि इसको डिस्कस करना जरूरी है कि नहीं है। अगर दूसरा पार्टनर कहता है कि नहीं नहीं मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, तो आप वहीं समझ जाओ कि इसके लिए सेक्सुअल हेल्थ या सेक्सुअलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है राइट नाउ। क्योंकि अब जिस सेंचुरी में हम लोग हैं, अरेंज मैरिज होना एक बहुत बड़ी बात है। Yes. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इतने ओपननेस आ चुकी है, इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, अरेंज मैरिज हो रही है वही एक बड़ी बात है। उस अगर मैरिज में भी इस सेंचुरी में अगर हम सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पार्टनर से आप आगे क्या बात कर पाओगे, पहले तो ये समझो। एंड आई Mm-hmm. थिंक कॉन्वर्सेशन जो स्टार्टर्स हो सकते हैं वो ऑलवेज हो सकते हैं कि वी कैन बी फ्रैंक अबाउट इट, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वर इन, क्या आपका पहले कभी रिलेशनशिप था, हाउ हेल्दी दैट रिलेशनशिप वाज, और यू कुड simply ask them, do you really believe that sexually active is important for a marriage? Do you really feel after a marriage two couples should be sexually active to each other? कि मतलब बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो कि यार बच्चे होने के बाद तुम्हारा ऐसा तो कुछ बिलीव नहीं है कि अब क्या करना है सेक्स करके, अब तो बच्चा आ ही गया है, अब तो बच्चे का ध्यान रखना है, ऐसी कोई बिलीफ तो नहीं है तुम्हारे। या दूसरी चीज ऑन एन ओपन एंड क्वेश्चन कि आपको कैसा लगता है कि सेक्सुअली हाउ डू यू फील, do you feel a urge to have sex, do you feel that urge? मतलब अगर ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हम कर पाए और उसका एक डिस्कशन हम बहुत ही नॉट इन अ वल्गर वे, नॉट इन अ वे इट शुड नॉट अफेक्ट द रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर, बट इन अ वेरी इंटेलेक्चुअल वे, कि इंटेलेक्चुअली आप बात कर पा रहे हो उस बारे में कि मान लो कि मैं और आप एक प्रोस्पेक्ट के लिए मिले हैं, मैंने बहुत ही फ्रैंकली आपसे पूछा पुलकित व्हाट वर योर रिलेशन बिफोर, और आप सेक्स के बारे में क्या समझते हो, सेक्स एजुकेशन के बारे में क्या समझते हो, व्हेन डू यू थिंक अ कपल शुड प्लान अ बेबी। ये बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है एंड इट शुड बी डिस्कस्ड। दो लोगों के साथ जिंदगी बितानी है, पहला इतनी बड़ी सेक्सुअल लाइफ है, इतना सारा पार्ट है उसका, उनको हनीमून पे भी जाना है, उनको बाद में भी एक दूसरे के साथ रहना है। तो इसके एक बहुत ही सिंपल ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं कि रिलेशनशिप पहले कौन सा था, when do you think we should plan a baby, what do you think about our sexual life together, do you feel I am you feel attracted to me, do you feel that you want to have like a good sexual life with me? These are very important open ended questions। अगर वहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअली दे शुड बी एबल टू टॉक कि हम दोनों को साथ रहना है शादी के बाद। कुछ भी मैटर नहीं करता कि मैं अभी इतना कितना पैसा कमा रहा हूँ, ऑब्वियसली दैट विल इंक्रीज इन टाइम, बट मैटर करता है कि हम दोनों के बीच में इंटीमेसी हो सकती है क्या, डू यू फील आई एम दैट अट्रैक्टिव टू यू और यू फील अट्रैक्टेड टू मी,
Do you feel कि you would want to have a good sexual life with me? They can discuss all these things कि अब हो सकता है एक लड़की से आप मिलने गए, वो कहती है कि मेरे पहले कोई रिलेशनशिप नहीं रहे, मैं तो वर्जिन हूँ, है ना? हम्म। अगर वो लड़की 30 साल की है, वो कहती है वो वर्जिन है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है ना? मतलब इट्स लाइक कि पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कोई रिलेशनशिप ही नहीं हुए। हो सकता है कि उस मैरिज में आपको थोड़ी डिफिकल्टी आए टू इनिशिएट सेक्सुअल एक्टिविटी, है ना? आपको सेक्स करने में प्रॉब्लम आए, इंटरकोर्स में प्रॉब्लम आए, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल नई है इसके लिए। यू नीड टू रियली टेल हर कि एंजाइटी नहीं होनी चाहिए इस चीज को लेके। कई बार ना लेट मैरिजेस एंड लेट सेक्सुअल लाइफ इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम टू क्रिएट एंजाइटी इनसाइड समवंस माइंड, चाहे वो लड़का या लड़की है। अगर मैं लड़की हूँ और मैं सेक्सुअली एक्टिव नहीं रही बहुत एज तक, मान लो कि आई एम 27 एंड आई एम नॉट सेक्सुअली एक्टिव एट ऑल, तो ना मुझे बड़ी एंजाइटी हो गई, शादी के पहले भी और शादी के बाद उस लड़के के साथ थोड़ा सेक्सुअली एक्टिव होने में, कि पेन तो नहीं होगा, दिक्कत तो नहीं होगी, कैसा अजीब सा तो नहीं होगा, कैसे मतलब उनको अपनी बॉडी को लेके भी इफेक्ट प्रॉब्लम हो सकती है कि मेरी बॉडी कैसे दिखेगी, लाइट तो नहीं बंद कर दूं, पूरी लाइट बंद कर दूं फिर सेक्स करेंगे। उसको अपनी हम्म। बॉडी के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, क्योंकि पहले कभी कुछ किया ही नहीं है। तो उसको लगेगा यार मैं पता नहीं कैसी दिख रही हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ कि नहीं दिखती हूँ, तो बोलेगी लाइट बंद कर दो और फिर करेंगे सब ढंग से। अगर लड़का हुआ ऑपोजिट, जिसने कभी भी सेक्सुअली एक्टिव हुआ ही नहीं है, तो उसको भी एक तरह का डर होगा, परफॉर्मेंस प्रेशर का डर होगा। उसको लगेगा पता नहीं मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा लड़की के साथ, क्या मैं आई विल बी एबल टू हैंडल ऑल दोज प्रेशर्स ऑफ मैरिज एंड सो मेनी थिंग्स ऑन दैट फर्स्ट नाइट। वो सारा बिल्डअप दिमाग में आ जाता है। Yeah. तो अगर आप एक्चुअली में जब आप मिल रहे हो एक दूसरे से और बहुत ही इंटेलेक्चुअली, बहुत ही सटनली इस चीज को डिस्कस कर रहे हो कि यार हमें हमारा कैसा रहेगा आफ्टर मैरिज सेक्सुअल लाइफ, या जब आपको कोर्टशिप पीरियड है एंड यू आर वेरी सेक्सुअली एक्टिव इन दैट कोर्टशिप पीरियड। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिफोर मैरिज सेक्स कर लो, हम ऐसा कुछ प्रमोट नहीं कर रहे यार, ऐसा हम चाहते नहीं है। ठीक है, सबके अपने कल्चरल बिलीफ्स हैं, वो उस हिसाब से चलना चाहिए। बट हाँ, एक फिजिकल इंटीमेसी फोन पे ही एटलीस्ट एक दूसरे को मिलने में है, जब आप मिल रहे हो फॉर द मैरिज शॉपिंग, फॉर योर डेट्स। एक तो जो लोग शादी कर रहे हैं ना, अरेंज भी कर रहे हैं, उसमें कोर्टशिप पीरियड में डेट्स पे तो जाना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हेन यू एक्चुअली डेवलप अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद ईच अदर। इट्स अ न्यू रिलेशनशिप एंड यू डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू शेप अप। हो सकता है Yeah. कोर्टशिप में आपको कुछ रेड फ्लैग्स मिल जाए, ग्रीन फ्लैग्स भी मिल सकते हैं कि हाँ यार लगता है कि सेक्सुअली बहुत सही हो सकती है और मजा मजा आ रहा है इसके साथ बात करने में। कई अरेंज मैरिजेस लव मैरिजेस जैसी लगती भी हैं, इतना अच्छा वो ओपन अप हो जाते हैं एक दूसरे से। Yes. और ऐसा भी हो सकता है आपको रेड फ्लैग भी मिल जाए, उसी कोर्टशिप पीरियड में आपको पता चल जाए डेट्स पे ही, डेट्स पे जाना जरूरी है, कि यार ये ठीक नहीं है, इसकी थिंकिंग थोड़ी सी अजीब है, मेरे अकॉर्डिंग समझ नहीं आ रही। मैं तो सोच रहा हूँ कि यार शादी के बाद हम लोग ऐसे डेट्स करेंगे, इतनी मस्ती करेंगे, और ये करियर मुझे तो इतना काम करना है, मुझे तो मतलब ही नहीं इन चीज़ों से। ये वो डेट्स पे पता चल रहा है कि हाँ यार सेक्सुअल लाइफ क्या होती है वो तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। तो मतलब somehow those initiate talks in the courtship period on the dates can actually tell you a lot about a person। हाइजीन के Mm-hmm. बारे में पता चल सकता है, राइट? अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। कई लोगों के लिए सेक्सुअली हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, सोचो कि Agreed. बंदा कैसे रेडी हो रहा है, नहा रहा है डेली, वो आपको पता चल जाता है ऑब्वियसली ना, कोर्टशिप पीरियड ना, कि उस बंदे की आदतें कैसी हैं टू ऑल अराउंड। Yeah. तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली कोरिलेट विद दीज थिंग्स इन द कोर्टशिप पीरियड। जब आप डेट पे जा रहे हो, तब आप देख रहे हो बंदा कितना एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए, कैसे ऐसे आपसे बात कर रहा है, क्या वो एक्चुअली में बार बार बोल रहा है कि यार लेट्स हैव अ किस, लेट्स जस्ट हग ईच अदर, लेट्स होल्ड हैंड्स। बहुत ही सिंपल चीज है। फिजिकल टच कुछ भी हो सकता है, फिजिकल टच इतना भी हो सकता है कि जब आप अपने पार्टनर से मिल रहे हो कोर्टशिप में, उनका हाथ पकड़ना चाहते हो कंटिन्यूअसली, यू वांट टू बी इन टच विद देम। तो उससे बहुत Yeah. कुछ पता चल जाता है कि आपका अट्रैक्शन कैसा है उस पार्टनर के साथ, आपका फिजिकल टच उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या वो कंटिन्यूअसली उस प्रोसेस में है कि नहीं, डू दे रियली टेल यू कि यार आई रियली वांट टू किस यू और रियली वांट टू गो आउट विद यू, क्या वो एक्साइटमेंट नजर आ रही है। तो ये इतने सारे जो ये सिग्नल्स है ना, दे विल टेल यू कि आप सेक्सुअली कंपैटिबल बाद में हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो। अब कोई आदमी बोलता है रात में बात करता है यार मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मुझे तो बात नहीं करनी, लड़की बोलती है यार मेरा मन नहीं कर रहा है, तो ये तो रेड फ्लैग्स है। मतलब ये तो क्लियरली बता रहे हैं कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, और मे बी दे आर जस्ट नॉट फीलिंग सेक्सुअल, कुछ हार्मोनल इशू है, या दे आर जस्ट नॉट इनटू सेक्स एट ऑल। तो वो Mm-hmm. आपके लिए एक रेड फ्लैग साइन होंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यार नहीं, ये तो ठीक नहीं रहेगा। मतलब फिर यू कैन टेक अ बिगर डिसीजन ऑन योर लाइफ, क्योंकि आफ्टर मैरिज तो यार फिर तो इट्स अ इशू देन। सो Yeah, आई that's true. होप कि योर क्वेश्चन गॉट सम गुड आंसर्स।
Yes, 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 totally, totally. I'm gonna implement some of those in conversations. एंड आई एम Uh, श्योर जो लोग सुन रहे हैं या जो लोग सुनेंगे, दिल बी एबल टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि बहुत जरूरी है अपने पार्टनर को गेस करना बिफोर यू एक्चुअली गेट इनटू अ वेरी बिग रिलेशनशिप। बिकॉज Agreed. उसके Because बाद तो सिर्फ डिवोर्स ही होते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या एक दूसरे को झेलना ही पड़ेगा उनको। सो बिफोर दैट अगर आप गेस कर सकते हो, समझ सकते हो। अब यू नो, आई जस्ट टेल यू एन एग्जांपल। एक बहुत ही ओवरली सेक्सी लड़का है, बिल्ट अप है ना, बिल्कुल मस्कुलर। और लड़की आ गई एकदम अजीब सी और बोल रही है कि मुझे मुझे तो अजीब लगता है ऐसे करना, ये सब करना। तो दैट इज अ क्लियर साइन कि आप कहीं से भी कंपैटिबल नहीं हो। आपको सोचना पड़ेगा कि हाउ टू गेट इनटू द कॉन्वर्सेशन ऑफ सेक्स एटलीस्ट विद। you brought up a very important topic I would like to discuss is frustration or anxiety due to not being sexually active. Now, I have heard stories from a male counterpart, from the male side. I had friends who were not sexually active or were virgin up till 34, 35 years of age. माय गॉड। And the moment, few of our friends pushed them to, took them to Goa and they lost their virginity. And after that, it was like the baggage of the world was lifted from their shoulders. They had that openness. They were feeling a little bit of that happy vibe was somewhere, seen. Yeah, आई there. टोल्ड यू सेक्सुअल हेल्थ इज इक्वल टू मेंटल हेल्थ। Yep. योर सेक्सुअल हेल्थ इफ इज वेरी गुड, नो, you would want to love the world. It's that important. But given the Indian culture, Dr. Tanu, there's so many dogmas and myths and taboos So attached. many. Yeah. So, like if it is and goes mostly inclined towards females. If a girl is not virgin before marriage, she's not a marriage material as per the Indian standards out there, the cultures. Though things are evolving now slowly and steadily, People are accepting it. yes. But can you just share a few insights on the female side? How, if a female has been virgin for a long time or is not very sexually active for a long time, what sort of anxiety or thoughts, start to build up, and how can they come out, have a conversation with somebody, uh, probably their friends, siblings, or parents, whomsoever they find their confidence in, and try to break that loop and become sexually active, or what are the other ways to manage that sexual energy that keeps building in. So basically, अगर कोई फीमेल बहुत लॉन्ग टाइम तक सेक्सुअली एक्टिव नहीं हुई है, आफ्टर शी इज बीन इन अ मतलब 21 के बाद रिप्रोडक्टिव एज बहुत एक्टिव हो जाती है, हॉर्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं और आप एक्टिव नहीं हुए हो, तो बेसिकली आपको बहुत सारी एंजाइटी रहती है अबाउट योर बॉडी, हाउ डज योर बॉडी लुक। क्योंकि अभी तक आप किसी मेल से एक्सपोज हुए नहीं हो रिगार्डिंग दैट, आपको वैलिडेशन नहीं मिला है। एक होता है ना कि आप किसी के साथ सेक्सुअली एक्टिव होते हो तो दे वैलिडेट यू, ओ यू लुक सो ब्यूटीफुल, यू हैव सच गुड कर्व, यू आर सो गुड इन बेड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन ऐसा आपके साथ हुआ नहीं है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब फिर मैंने आपको बताया था ना एग्जाम्पल, दे वुड वॉन्ट टू हैव सेक्स इन अ डार्क रूम, दे डोंट वांट देयर पार्टनर टू सी देम। उनको लग रहा है ना कि भाई क्या वो मेरे बारे में सोचेंगे। बहुत लोगों ने मुझे इस बारे में बताया है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन। ठीक है। और कई बार आप देखोगे वो लड़कियां शेव भी नहीं कर रही हैं, बॉडी पे बाल वाल सब है, क्योंकि उनको वो फील नहीं आ रही ना, कि उनको लगता है कि वो एक्चुअली दे आर नॉट अट्रैक्टिव इनफ। वो अपना ध्यान रखना बंद कर देंगी। एक तो पता है इसको तोड़ने का एक ही तरीका है, एक तो सेक्स एजुकेशन एट अ वेरी अर्ली एज। I think this is a time now wherein parents should start talking to their daughters, especially daughters. लड़के तो क्या करते हैं, आपस में लड़कों से बात कर ले, मैंने मैस्टरबेट करना शुरू कर दिया है, मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, मुझे ये फील हुआ एक लड़की को देख के। दे स्टार्ट टॉकिंग, बॉयज हैव अ डिस्कशन अराउंड इट एंड दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट एंड दे डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन इट। लड़कियां कई बार ना अंदर अंदर बंद रह जाती हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये ठीक है कि वो ठीक है, एंजाइटी हो जाती है उनको। इसमें इंपॉर्टेंट है कि उनकी मदर्स उनकी हेल्प करें, एक सेक्सुअल एजुकेशन शुरू हो, है ना। दे शुड बी एबल टू टेल देम कि यू शुड फील गुड अबाउट योर बॉडी। उनका सेल्फ एस्टीम बिल्डअप करना चाहिए। आपको ऐसे सर्कल ऑफ फ्रेंड्स होने चाहिए हु आर एबल टू कंग्रेचुलेट यू, एनकरेज यू अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर फीलिंग्स। अगर आप उनसे बात करो कि यार मेरे को तो सेक्सुअली बिल्कुल एक्टिव फील ही नहीं होता, मेरा तो मन ही नहीं करता सेक्स करने का, तो वो आपको कुछ सजेशंस दे कि दिस इज फ्रेंड ऑफ माइंड, डू यू वांट डेट हिम, डू यू वांट एटलीस्ट फील दैट अर्ज टू सेक्स। नॉट डू सेक्स इज योर चॉइस, इट्स ऑल योर चॉइस, बट यू शुड गिव देम दैट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव कि नहीं नहीं यार इतना बुरा नहीं है डेट करके देखना किसी को, या किसी के साथ थोड़ी देर घूमना, समझना। मतलब उनको वो एटलीस्ट उस तरह के ऑप्शन दे। इसमें
पेरेंट्स का ओपन होना बहुत जरूरी है लड़कियों के साथ। अगर लड़कियों को हमें इस लूप से बाहर निकालना है या इस प्रॉब्लम से निकालना है, पेरेंट्स आर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, मदर्स आर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल एजुकेशन एट स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर टॉट अबाउट सेक्स, क्योंकि इसमें दोनों एस्पेक्ट है ना। कुछ लड़कियां सेक्सुअली इतनी जल्दी एक्टिव हो गई हैं कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन भी नहीं लगी है तब तक, राइट। दूसरी चीज की उनमें अनवांटेड प्रेगनेंसी हो रही है क्योंकि सेक्सुअली एजुकेट नहीं किया गया, उनको प्रॉपरली बताया Yeah. नहीं गया है कि कॉन्डम का क्या यूज है। या उनको बहुत जल्दी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो रहे हैं बिकॉज उनको समझाया ही नहीं गया है कि कॉन्डम कितनी चीजों से प्रिवेंट करता है। सिर्फ प्रेगनेंसी प्रिवेंट नहीं करता है, एसटीडी भी प्रिवेंट करता है। या Yes. उनको मल्टीपल पार्टनर नहीं होने चाहिए ये भी नहीं सिखाया गया है। मतलब सेक्सुअल एजुकेशन विल प्ले अ बिग रोल इन दिस। सेक्सुअल एजुकेशन में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन भी आ जाएगी क्योंकि every man carries the human papilloma virus, right? Once you're sexually active, you're exposed to that virus, right? मल्टीपल पार्टनर्स हुए मान लो आपके, तो आप मल्टीपल वायरस के स्ट्रेन से एक्सपोज हो गए। कैंसर का जो है ना प्रॉब्लम है वो हो सकता है। पर वो वैक्सीन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, स्कूल्स में भी नहीं कर रहे हैं। जबकि 15-16 की एज में लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव हो रही हैं। वी शुड एक्सेप्ट दैट इन दिस सेंचुरी। तो Yes. Yes. दैट शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। So sexual education will play a big role in this. Sexual wellness sexual education से start होती है। फर्स्ट थिंग, जहाँ आपको सब समझाया जाता है सेक्सुअल एजुकेशन में, हाइजीन के बारे में, एसटीडीज के बारे में, मल्टीपल पार्टनर्स के बारे में, आप ए सेक्सुअल हो तो हार्मोनल के बारे में। एंड अगर मान लो कि अगर उसकी मदर ओपन है बेटी से, तो बेटी बता पाएगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मदर उसके गायनेक के पास ले जाएगी, गायनेक से बात करेगी लड़की, अपनी प्रॉब्लम बताएगी, हॉर्मोन्स चेक हो सकते हैं। मे बी गायनेकोलॉजिस्ट को काउंसिल कर सकती है ना, दे आर देयर टू हेल्प। मे बी वो कह सकती है चलो मैं इनको एक थेरेपिस्ट को रेफर कर देती हूँ, काउंसलर को रेफर कर देती हूँ। काउंसलिंग Mhm. सेशन में उस लड़की की जितनी भी एंजाइटी है, मेंटल इश्यूज हैं, उस चीज को लेके वो एड्रेस हो सकते हैं। मे बी उसकी एक एक बिल्डअप शुरू हो जाएगा, शी विल बी एबल टू एटलीस्ट नॉट फियर अबाउट दीज थिंग्स। और Yeah. बाकी फ्रेंड्स के साथ, यू हैव अ सर्कल ऑफ गुड फ्रेंड्स, यू शुड डिस्कस विद देम। they might be able to help you in setting up some kind of dates or maybe resolving your issues। क्या पता वो सेक्सुअली एक्टिव हो, उनके पास कोई अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस और वो आपसे शेयर कर दे, तो आपकी एंजाइटी कम हो जाए। सो इट्स अ मल्टी लेवल अप्रोच, एक चीज से नहीं होगा। मल्टी लेवल अप्रोच इसमें लगा के तब कुछ बेटर हो सकता है। फीमेल्स की अगर मैं बात करूं इन दिस पर्सपेक्टिव। I totally agree on the importance of sexual education for both the genders or all the genders out there. Because whomsoever I know in their schools, reproductive chapter is something that's just skipped, or the notes are given, and you're just asked to write some long answers in the examination. But nobody actually discusses or have those open conversations around, what is that sexual urge? How do you control that, or how you can manage that? वेरी गुड, वेरी गुड, यू हैव पॉइंटेड आउट। सेक्सुअल अर्ज को मैनेज करना भी उनको बताना चाहिए, बहुत जरूरी है। इससे एटलीस्ट आई थिंक रेप भी कम हो सकते हैं। मतलब एटलीस्ट अगर आप मेन एंड वुमेन को ये चीज सिखा दो, स्पेशली मेन को भी, तो कितना इजी हो जाएगा उनके इमोशंस को गेज करना। विमेन के I लिए इजी हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट करना, वेजिनाइटिस प्रिवेंट करना, एसटीडी प्रिवेंट करना, एचआईवी प्रिवेंट करना अपने लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सोसाइटी में जिसपे हेल्थ का बर्डन बढ़ रहा है, राइट, वो कम हो सकता है एक सिंपल टॉपिक को डिस्कस करने से, जो कि बहुत जरूरी है। सेक्सुअल एजुकेशन इन दिस इरा इज एज इम्पोर्टेंट एज डिस्कसिंग ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश इज एज इम्पोर्टेंट राइट नाउ। I totally agree on this. The point that you brought out, that if men are educated on sexual, education and managing the sexual urges, that rise in rape that we are looking at, that can be drastically brought down. Um, being a male, I know sort of conversations often boys have, and it's often rooted because they don't understand the whole scenario, the enigma of sex out there. राइट, So if that understanding is brought from an age where you're maturing, your teenage is coming, because males also have urges, females also have urges. Now, our society is such that it's male dominated society. इट इज And इट इज often the household environments are such where it is shown to them, even in their houses, that whatever as a male you need, you should get it. यू शुड गेट। And that somewhere or the other becomes the triggers for the, I don't have the right words for it right now, but nobody should go through, such a heinous crime that happens out there. बिल्कुल। So
if that this particular education is brought out, I am totally in sync with it, and more than happy through this podcast if somebody has some ideas on how to make it more open, Yes, and it make can it more. be, it can be, it can be. I'm more It than happy to discuss and take forward that conversation as well. of course, I mean, it should be done in every school, right from the age they are, I think, 10. Right from the age they are 10. Let's start educating them. Menstrual hygiene से लेके from the sexual urges. It's a very important thing to do. And I think in this century, हम जैसे लोग जब बार बार इस पे बात करेंगे तो ये होना ही है. हमारे सेंचुरी में नहीं था, हमारे स्कूल्स में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, बाद में भी नहीं हुआ. इवन आई वाज इन मेडिकल स्कूल, वहां पे भी नहीं होता था ये सब इतना डिस्कस. मुझे लगता है इसका जो टैबू है ना वो हट तो रहा है धीरे धीरे करके. बट अगर हमारे जैसे लोग और डिस्कस करते हैं ना इसको तो ये टैबू और हट जाएगा. Agree. सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करना इंडिया में इजी होने लगेगा धीरे धीरे करके. व्हेन पीपल लाइक अस आर डिस्कसिंग ऑन अ पॉडकास्ट एंड टेलिंग थिंग्स ऑन फ्रंट कि यार ये प्रॉब्लम है, ये है, इससे ये बेटर हो जाएगा, इससे ये बेटर हो सकता है. सो आई थिंक दिस विल क्रिएट अ चेंज फॉर श्योर. Another question related to sexual education, Dr. Tanu. See, for most of the teenagers out there, even in our generation, and I believe today as well, the single source of information is usually porn out there. And porn creates a lot of myths and setups It a some. lot of even unrealistic expectations, Yes. right? So what could be the right sources for people to consume to understand sexual education? आई थिंक सेक्सुअल एजुकेशन को अंडरस्टैंड करना है तो इंडिया में अभी तो बहुत सारा राइट कंटेंट है नहीं. तो यूट्यूब भी बहुत सारी मिक्स चीज़ों से बहुत भरा भरा हुआ है. उसका राइट कंटेंट अवेलेबिलिटी इंडिया में मतलब आई एम रियली सॉरी टू से बट देर आर नो प्रॉपर चैनल वेर आई कैन टेल की पीपल कि हाँ आप वहाँ चले जाओ और देख लो. पॉर्न एक बहुत ही बुरा सेक्सुअल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है. वन, उसमें कुछ जो चीजें दिखाई जाती है वो अनरियलिस्टिक है. दे डू नॉट रिलेट टू हाउ सेक्सुअल हेल्थ इज, हाउ सेक्सुअल इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, हाउ सेक्सुअल वेलनेस इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ. उसमें एक तरह का ना एक अनरियलिस्टिक जो व्यू दिखाते हैं उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके हिसाब से चलते रहते हैं. Yeah. उसकी वजह से क्या होता है ना कि आपको कभी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी एक तो. दूसरी चीज, आप कुछ अजीब सी वैसे एक्टिविटीज करोगे जो सेक्सुअली अलाइन नहीं होती, राइट? तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. उससे मैरिजेस में प्रॉब्लम आ सकती है. लड़का जो पॉर्न देख रहा है और लड़की देख ही नहीं रही है, समझ रहे हो? तो वो Yes. लड़का अगर अजीब से एक्सपेक्टेशन लेके वो लड़की के पास चला जाएगा. वो लड़की कह रही है, "अरे ये क्या सब चल रहा है, अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं." मतलब वो ना एक सॉर्ट ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी क्रिएशन वहां से शुरू हो जाती है. बट इंडिया में राइट नाउ इफ यू से देयर आर चैनल्स, no, there's no good channel created. I think it should be created wherein people are able to know about what is sexual health in, like, they should be able to talk about ki, इस चैनल पे they talk about how you should be doing sex, intercourse कैसे करते हैं ना, वो तक बताया जाए. ताकि बहुत ही यंग जो लोग हैं जो देख रहे हैं, मान लो 17-18 साल के, दे बेसिकली नो व्हाट इज अ थिंग. पिनाइल फ्रैक्चर्स हो गए, फाइमोसिस हो गया, दीज आर मेडिकल टर्म्स. बट ये Yeah. होता है हॉस्पिटल में. हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनका पेनिस चिपका हुआ है, वहां पेनिस में इन्फेक्शन है, फ्रैक्चर तक हो गया, वहां एब्सेस तक हो गई है. फीमेल सेम, फीमेल्स आती हैं बिल्कुल डैमेज्ड वजाइना, अजीब सा खून निकल रहा है पोस्ट सेक्स. क्योंकि उनको ना वो कोई चैनल नहीं मिला समझने के लिए कि कैसे करना चाहिए था. Yeah. बात भी नहीं कर पाए किसी से और चैनल भी नहीं मिला, तो उनको समझ ही नहीं आता करना क्या चाहिए. और ये भी समझ नहीं आ पाता कि ये हमारे साथ गलत हो गया. वो बहुत दिनों बाद हमारे पास आते हैं, फिर बहुत बड़े बड़े प्रोसीजर करने पड़ते हैं, दवाइयां देनी पड़ती हैं. तो मतलब कि एक प्रॉपर चैनल नहीं है रिगार्डिंग दिस अभी. आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में होगा. आई एम श्योर देयर विल बी अ प्रॉपर चैनल वेयर पीपल विल टॉक अबाउट व्हाट इज सेक्स, हाउ इज व्हाट इज द वे ऑफ मेकिंग योर पार्टनर satisfied with your sexual activity, how do you respect a partner in sexual activity. ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पता है? आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट कैसे कर रहे हो व्हेन यू आर हैविंग इंटरकोर्स, है ना? ऐसा तो नहीं है कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो या आप उसे कंपेयर कर रहे हो किसी और से और उसकी इमोशनल, उसकी मेंटल उससे खेल रहे हो. कई बार ऐसा नहीं होता, आप किसी से सेक्स कर रहे हो और बोल रहे हो यार तेरा तो बड़ा अजीब सा है, या तो तू Yeah. बड़ी अजीब लगती है. आप एक्चुअली उसी दिन उसी टाइम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का सेल्फ एस्टीम डाउन कर देते हो. हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो किसी के साथ करेगा तो उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी और बहुत ज्यादा कॉन्शियस फील होगा. सो ये सारी चीजें जो है ना, ये सेक्सुअल रिस्पेक्ट इवन फॉर द पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
Well, that's a very nice point that you have brought out. And Samyuddha, I believe even if you are not in a sexual relationship, if you are in just, I would say, a normal relationship where you have not started being sexually active, respecting each other individual is important. Very important. You cannot like defame or body shame anyone if you're in a relationship. अगर आपको वो बंदा नहीं समझ में आ रहा तो रिलेशनशिप स्टार्ट ही मत करो. बट रिलेशनशिप में रह के तू पतला बहुत है, तू मोटा बहुत है, तेरा ये अच्छा नहीं है, तेरा ये अच्छा नहीं है, तेरा कलर, ये तो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है. दैट विल ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप. एंड सेक्सुअल हेल्थ तो आपकी खराब होनी ही है. बहुत सारे मैरिजेस में आपने देखा है कि पीपल स्टॉप रिस्पेक्टिंग यू or your body. They will start saying things which are actually not good to hear. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था वो बंदा या बंदी तो करे ही क्यों शादी, ये रिलेशनशिप क्यों किया, है ना. मतलब तो वो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक रिलेशनशिप में घुस रहे हो तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे रहना है इस बंदे के साथ या बंदी के साथ. बाद में आप उसको कलर, बॉडी टाइप के लिए, ठीक है, मैं अपने पार्टनर को फिटनेस के लिए बोल सकती हूँ. अगर आई एम इन रिलेशनशिप विद माई पार्टनर आई कैन टेल कि यार फिट तो रहना चाहिए बिकॉज हमारी बॉडी को जरूरत है फिट रहने की, नहीं तो बीमारियां लग जाएंगी. वो एक हेल्दी एस्पेक्ट हो गया. पर ऐसा नहीं है कि आप अजीब तरह से किसी को बॉडी शेम करने लगो. यू शुड से इन अ वे दैट दे शुड बी एबल टू डू अ चेंज इन देयर लाइफ. Yeah, बट ऐसा नहीं है कि अब बॉडी शेम, कलर शेम एंड ऑल दोस कंपैरिजंस यू स्टार्ट डूइंग. दैट इज नॉट गुड फॉर अ रिलेशनशिप. सेक्सुअल agree. रिस्पेक्ट इज वन थिंग. No, I totally agree. Constructive feedback is important, and I would say even constructive criticism is good, having that. Yes, But yes, of course. and the tonality and the use of words completely can make it destructive, which could lead to further, you आप know, कोर्ट में जाके देखो, 70% केसेस सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी के हैं. और वो इनकम्पैटिबिलिटी कुछ भी नहीं है, उन्होंने कभी बात ही नहीं की एक दूसरे से, या उनमें से एक भी पार्टनर ने कभी किसी डॉक्टर की या किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ही नहीं ली. उन्होंने जरूरी ही नहीं समझा क्योंकि उन्होंने लड़ाई कर ली बस इसके ऊपर. अगर लड़ाई नहीं करते, डिस्कस कर लेते, बात कर लेते, ये एक दूसरे को थोड़ा सा दैट काइंड ऑफ स्पेस दे देते इम्प्रूवमेंट का, तो शायद चीजें चेंज हो सकती थी. बट हम करें क्यों? दोनों में ईगो है, करना कोई नहीं agree. चाहता, बात This कोई नहीं करना चाहता. is very important, and I'm skipping the name of Ayushmann Khurrana's movie in which he became a gynecologist. Even in that, a lot of moments have been shown where, because of lack of conversation or lack of sexual education, there were fallouts happening. I remember one specific episode where the woman was not able to get pregnant, and then she quietly goes and tells that this guy does not know how to where to penetrate exactly. So आई these sort of रिमेम्बर दैट. conversations, need to happen and need to happen in a safe environment as well, I believe. आपने बहुत अच्छी चीज पॉइंट आउट की है एंड आई लव दैट मूवी व्हाट आयुष्मान डिड देयर. एंड मूवीज हमारे रियल लाइफ जो सोसाइटी में चल रहा है उसका एक पार्ट है. मूवी में वही दिखाते हैं जो रियल लाइफ और सोसाइटी में चल रहा होता है, टू एक्चुअली मेक अ पॉइंट आउट ऑफ इट, मेक अ मैसेज आउट ऑफ इट. तो जब वो Yeah, लड़की बोल रही है इसको पता ही नहीं पेनिट्रेट कैसे करते हैं, राइट, तो उन्होंने आपस में कभी बात ही नहीं की थी बेसिकली. या हो yeah, सकता है कि वो किसी की हेल्प ले लेते हैं इसमें. मान लो शादी हुई या रिलेशनशिप था और ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो या तो गायनेक, यूरोलॉजिस्ट, सेक्सुअल हेल्थ के डॉक्टर्स भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, उनके पास चले जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. बट डिस्कस कौन करे? ईगो तो वो है फर्स्ट ऑफ ऑल. फिर अगर इजी वे आउट है कि निकल सकते हैं बाहर तो निकल ही जाते हैं. वाई वाई स्टे इन अ रिलेशनशिप, भगा देते हैं इस आदमी को या लेडी को. तो वो प्रॉब्लम है बेसिकली. यहाँ नीड अलग ही है. यहाँ नीड है कि इतने ऑप्शंस अवेलेबल है कि व्हाई नॉट चेंज द ऑप्शन. जैसे कि वार्डरोब में इतनी सारी शर्ट्स अवेलेबल है, आज ये क्रीज में नहीं है, ये गंदी हो गई है, तो फेंक दो ना इसको. वो प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम यहाँ अराइज हो रही है. हम वो understood. एक्चुअली में उस टॉपिक पे काम ही नहीं करना चाहते, हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, हम लोगों से डिस्कस नहीं करना चाहते. हेल्प हर जगह अवेलेबल है, आपके पास इतना बड़ा सर्कल ऑफ हेल्प है, पर करे कौन? वो प्रॉब्लम है. Yes, nobody is ready to ask that question. एंड डिस्कस विद देयर पार्टनर, डिस्कस. क्योंकि शर्म भी आ रही है, कई बार तो ईगो है, कई बार तो शाइनेस भी है. लड़कियों Yes, को लड़कों को कहने में शाइनेस है कि यार मुझे मजा नहीं आया. वो फेक ऑर्गेजम सुना ही होगा आपने, फेक yes, ऑर्गेजम yes, करके yes, खत्म yes. करते हैं काम. तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि बात तो कर ले यार. अगर फेक ऑर्गेजम क्यों करना है, बात कर लो. नेक्स्ट डे बोल दो कि यार मेरे को मजा नहीं आया, कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ और मस्ती करते हैं. पर वो बात ही नहीं करनी. एक तो इतना कॉमन है मैरिज में, मैरिज सेक्स इतना 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 एवरेज हो जाता है लोगों का. उसका रीजन पता है क्या है? एक तो बच्चे हो जाते हैं तो कहते हैं बच्चों के पास करने की जरूरत ही क्या है.
अब तो हम पेरेंट्स हैं, तो अब अपने बच्चे को एक मैसेज दे रहे हो बेसिकली, कि तू शादी करेगा ना और तेरा बच्चा होगा तो तू छोड़ दे यार, क्या फर्क पड़ता है। जब आप फिट नहीं रहते हो ना, और जब आप एक्चुअली में ऐसी बातें करते हो, आप अपने बच्चों को एक मैसेज देते हो। अगर मैं आज फिट हूँ, मैं जिम जा रही हूँ, मेरा बेटा कहता है कि मेरी मम्मा सुबह उठ के जिम जा रही है, तो वो एक मैसेज अपने दिमाग में लेके जा रहा है कि मैं भी जिम जाऊंगा, मुझे भी फिट रहना है। तो आपके बच्चों की एजुकेशन आपसे ही शुरू हो रही है, चाहे वो सेक्सुअल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, न्यूट्रिशनल हो, वो आप ही से शुरू हो रही है बेसिकली। अगर You आप know, ये कहते हो ना कि मुझे इतना काम है, मेरे पास टाइम ही नहीं है इन चीजों के लिए, तो एक्चुअली मैं उस बच्चे को भी वही सिखा रहे हूँ इन अ वे, कि भाई मेरे पास yes, टाइम तो है ही नहीं, हम नहीं करेंगे। तो बच्चा भी कह रहा है मेरे पास भी टाइम नहीं है, अपनी बीवी को बोल रहा है, वो अपने पति को बोल रही है कि क्यों करना है, सेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वहां से फिर रिलेशनशिप के इश्यूज और वो प्रॉब्लम शुरू होती हैं फिर वहां से। there's so many points coming to my mind, but one of the important points I would like to discuss is a female's body, a woman's body is filled with so many hormones out there. या In a manner, God has given women the power to keep the human race alive and reproduce and keep it in existence. Males alone can't do it. Now, there's so many energy sources in a woman's body which also have a negative impact on her own health. Can ओके। you highlight some of these areas? Like I've seen, like you talked about cervical cancer as one of those areas. राइट। Breast cancer is becoming really prevalent, which again is a very topic, of not discussed at all. Yuvraj Singh is doing a lot of work around spreading awareness about breast cancer, organizing camps and whatnot. But still, for the major portion of the society, and specifically the urban society, यस। देखो nobody प्रॉब्लम talks कहाँ about है it. ना कि हम अपने आप को चेक ही नहीं करते, वी डोंट टच आवरसेल्व्स, टच करने में अपने आप को इशू है। सबको यही तो सिखाना है कि कीप टचिंग योर सेल्फ, कीप टचिंग योर ब्रेस्ट, कीप एग्जामिनिंग योर ब्रेस्ट, मॉर्निंग यू टेक अ शावर। तो अगर आपको वहाँ एक्जिला के अराउंड या ब्रेस्ट के अराउंड कुछ भी मिलता है तो आप करवा सकते हो। देखो 6 मंथ्स में मेमोग्राफी होनी चाहिए, ये तो हमने बोला ही है ना, ये तो मस्ट है। अगर आपकी मैरिज लेट हो रही है, आपने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की है, बच्चा नहीं हुआ है, तो आप सबसे ज्यादा हाई रिस्क हो ब्रेस्ट कैंसर के लिए, तो आपको एटलीस्ट मेमोग्राफी करा लेनी चाहिए। अपने आप को ब्रेस्ट को टच करने में क्या इशू है, इसमें क्या शर्म है यार, ये तो अपनी ही बॉडी है, अपने ऊपर तो सब कुछ करना चाहिए। तो मतलब ये दो चीजें अगर आप कर लो तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम हो सकता है इंडिया से, सिर्फ ये दो चीजें। एक मेमोग्राफी, ऑब्वियसली यू नो योर रिस्क फैक्टर्स, कि आपकी शादी नहीं हो रही है, अभी बहुत साल हो गए हैं, आप सेक्सुअली इतने एक्टिव नहीं हो, मतलब आपको बच्चा भी नहीं हुआ है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं हुई है। दूसरा मेमोग्राफी हर 6 महीने में, एंड डिस्कसिंग विद योर गायनेकोलॉजिस्ट। इतना ही सिंपल काम करना है, बस दो ही सिंपल काम। बट वही है, वो समझना पड़ेगा उस चीज के I just बारे में। want to bring in a perspective in picture with my next question. Today, career advancement has become so core to everybody's life for all the genders out there, where relationships are the last priority or even not in the priority list at all. Now, as per the current society culture we are in, becoming sexually active becomes even a further distant dream out there or requirement, I would say. So how can a balance be brought in, or how can conversations be initiated around while you are focusing on your career advancement, but this part of your life is also important, getting into a relationship, being sexually active. So how can these conversations be initiated? आई थिंक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन, इफ यू आर मैरिड तो आपके पार्टनर के साथ ही हो सकता है, व्हेन यू आर डिस्कसिंग विद देम, कि आप कुछ टाइम, लीजर टाइम निकालो अपने लिए। यू आर बिजी, वी ऑल आर बिजी, आई एम श्योर अबाउट दैट। बट यू आर गोइंग ऑन डेट्स, एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन तो बाहर डिनर पे जाओ। मे बी यू विल डिस्कस सम अमाउंट ऑफ सेक्सुअल अराउजल्स विद ईच अदर। सेकेंड वे आउट, एक दूसरे को मैसेजेस करो। अगर आप मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, तो एक दूसरे को फ्लर्टी मैसेज करने में क्या प्रॉब्लम है? व्हाई नॉट डू अ फ्लर्टी मैसेज? Men can give good lingerie to women when they're in a relationship. That brings more and more excitement in women's life कि I got a nice lingerie, let's have a nice night together. मतलब कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप अपने बिजी करियर में भी कर सकते हो। when you're actually texting your wife in mid of a afternoon कि यार I really want to come back home and should plan a nice night together, that will bring a change. Or same from the women's side, when women who's an entrepreneur, because nowadays women are entrepreneur and they're so busy। इनफर्टिलिटी का मेजर कॉज क्या है, आपको क्या लगता है? हार्मोन मेजर कॉज है? नहीं।
मेजर कॉज है हम लोगों की अवेलेबिलिटी टू ईच अदर, कि हम सेक्स कब कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या बहुत जल्दी जल्दी बस कुछ काम है खत्म कर दिया। प्रॉब्लम सारी वहां अराइज हो गई है। आपके विमेन आर ऑल्सो एंटरप्रेन्योर, देर ऑल्सो आउट ऑफ द हाउस, दे आर वेरी बिजी, दे आर ट्रैवलिंग। तो ओव्यूलेशन पीरियड के टाइम तो वो ट्रैवल कर रही होंगी, क्या पता। तो इनफर्टिलिटी को हम लोग सोचते हैं कि यार इनफर्टिलिटी इसलिए हो रही है, बस हार्मोन की प्रॉब्लम है। हार्मोन की प्रॉब्लम नहीं, इट्स अ होल लाइफस्टाइल थिंग। आप स्ट्रेस जो है आपका, दैट विल कॉजेज इनफर्टिलिटी। आपकी अनअवेलेबिलिटी ड्यूरिंग योर ओव्यूलेशन टाइम एंड विद योर पार्टनर, हाउ आर यू फीलिंग, हाउ इज द सेक्सुअल compatibility, and how sexually you're aroused or you're happy with your partner, that is a big cause। हम भाग तो रहे हैं फर्टिलिटी क्लिनिक में, चलना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, हार्मोन भी चेक करा रहे हैं, पर क्या हम बाकी एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं कि हम घर पे कैसे हैं अपने पार्टनर के साथ, क्या हमारा इमोशनल कनेक्ट अच्छा है कि नहीं है, या हम पार्टनर के साथ सेक्सुअली अराउज्ड है कि नहीं है, क्या हमें सेक्सुअली अट्रैक्शन है कि नहीं है पार्टनर के साथ, या हम वो टाइम निकाल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ जब हमें सेक्सुअली एक्टिव होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो ये जो है ना रिलेशनशिप में, चाहे आप मैरिड हो नहीं मैरिड हो, बट आप जो एक अपने बिजी करियर में भी एक टाइम निकाल के एक दूसरे को फ्लर्टी मैसेज भी कर दो, या एक डिनर पे ही चले जाओ, दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ चेंज। कि you're एबल टू मेक सम बैलेंस आउट ऑफ इट। कॉन्वर्सेशन का तो एक ही तरीका है ना, एक अच्छा फ्लर्टी मैसेज भेज दिया, आपका पार्टनर बड़ा अराउज हो गया, फिर एक नाइट प्लान कर ली, यस, इट कैन बी सॉल्व। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट नहीं है बिजी रहना और सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी या सेक्सुअल फायर को जिंदा रखना। इतना मुश्किल नहीं है, बस हम वो स्टेप लेना नहीं चाहते, हम वो एक मैसेज नहीं करना चाहते। Why me? वाई मी? एंड स्पेशली पता नहीं, लॉस्ट है। अगर एक्चुअली में लॉस नहीं है और समझ सकते हैं तो इतना मुश्किल तो नहीं हो सकता, फिर ये होना भी Yeah. नहीं चाहिए। Appreciating your partner is very important in this aspect. I agree. I Appreciate totally your agree. women. If you appreciate women, they would love you. You have to do that, but you need to keep appreciating her body, her curves. Keep, encouraging her like that. And same for men also, but women के केस में थोड़ा ज्यादा हो जाता है because they would love to hear compliments, and then Yeah. the sexual compatibility will increase. वो मतलब कहते हैं ना लड़के की, यार वो लड़की कहती है मेरा मन नहीं कर रहा रात में, मैं थकी हुई हूँ। तो अगर तुमने दिन में एक अच्छा मैसेज भेज दिया होता, या उसको अप्रिशिएट कर लिया होता सुबह अच्छी से कि आप बड़ी सुंदर लग रही हो, तो रात में अच्छा खासा सेक्स मिल जाता। इसने किया ही नहीं ना, तो वो लड़की Agreed. को लगता है यार मैं क्यों करूं, मैं भी थकी हुई हूँ, मैं तो सो रही हूँ। दिस You इज have हाउ। to nurture things. हाँ, Yeah. you have to nurture, you have to nurture any relationship, you need to nurture, then you Yes. get the benefit out of it, then you get good things out of it। इनफर्टिलिटी कुछ भी नहीं है, हम सबकी इग्नोरेंस है। Okay. हॉर्मोन्स तो होंगे डिस्टर्ब, मैं मना नहीं कर रही हूँ। Mhm. ऑब्वियसली पीसीओएस बहुत बड़ा टॉपिक है आज के टाइम में डिस्कस करने के लिए, ओबेसिटी बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन इनफर्टिलिटी होने का लाइफस्टाइल पे बहुत बड़ा वो है। लाइफस्टाइल अगर ठीक है ना, तो इनफर्टिलिटी पे हम बहुत अच्छा एक एक इंडिया में एक ब्रेक थ्रू ला सकते हैं कि नहीं, इंडिया इज स्टिल नॉट। और आपने देखा इनफर्टिलिटी कितनी हायर क्लासेस में है, लोअर क्लासेस में नहीं है। Yes. Yes. हायर क्लासेस में है, क्यों है हायर क्लासेस में? वही एफिलेंट क्लासेस हैं, बिजी स्केड्यूल्स हैं, टाइम नहीं है हस्बैंड वाइफ के पास, तो इनफर्टिलिटी है, तो भाग रहे हैं सब लोग। ये प्रॉब्लम है। हायर क्लासेस में होना ही था इसको, और उसका सिंपल सा सोल्यूशन था कि हम एक दूसरे को वो थोड़ा बहुत टाइम मैनेज करके एक एक तरह का एक एफर्ट डालते। एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा, मीटिंग के लिए एफर्ट डालते हो ना आप, तो Yeah. sex के लिए एफर्ट क्यों नहीं डालोगे? सिंपल। Agreed. Um, Jordan, something and I would like to discuss is, and specifically for the young women out there, teenagers specifically, post 15, 16. Today, with access to excess content over the TV, television, or the internet, विच we इज know, इवन नॉट करेक्ट समटाइम्स। yeah, which is not correct. Now, not defaming any brand or anything, but the use of IPLs I have seen is significantly increased. I've even seen in my friend circles out सेक्स there. एजुकेशन नहीं है इसका सबसे बड़ा टॉपिक। नेक्स्ट। Yes. So agreed, sex education is not there. But now young teenagers, probably 17, 18, 19, would engage in sexual intercourse. And the very next morning, they will ask the girl to pop in an IPL. For them, that's it. Now, for a woman, if I understand correctly, there's a limited दे number of डिस्टर्ब eggs. योर हार्मोन्स बैडली, Yes. बैडली।
for which I believe PCOS becomes one of the side effects at a later stage. Of course, it So if you is. can, I believe you have understood where I'm going with this. So if you can, help share awareness around this, the impact of IPIL on a woman's body at different age segments, and कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, because then there are daily contraceptive pills also coming into picture after post They are. marriage. There are So you there are can share such things. good options now for contraceptive. बेसिकली देखो, अगर आप लिव इन में रहते हो, ठीक है, अब आपने शादी तो नहीं की है, अब साथ रह रहे हो दोनों, सेक्स तो होगा ही, है ना? Yeah. अब आप डेली आईपीएल तो पॉप इन नहीं कर सकते। मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आप किसी भी तरह के ऐसे रिलेशनशिप में हो ना, आप डेली आईपीएल पॉप इन करोगे तो यू विल एंड अप इन पीसीओएस, क्योंकि वो आपके सारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देगा। आईपीएल सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि अगर वंस इन अ वाइल, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आपने सेक्स किया है और आपको लगता है अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है वंस इन अ वाइल, तो आप आईपीएल ले लो। डेली कॉन्ट्रासेप्टिव तो नहीं है वो, कि आपके 14 दिन एक्टिव है रिप्रोडक्शन की और आप 14 दिन सेक्स किया और आपने फिर आईपीएल लाइक अ टॉफी आपने ले ली, और उसके Actually, लेटर स्टेजेस consume पे। like a toffee. इट इज नॉट अ टॉफी यार, इट इज अ हार्मोन दैट यू आर टेकिंग। उस लड़की की हेल्थ के बारे में सोचो। यहाँ सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी चीज है जो आ रही है। आपके पास गायनेकोलॉजिस्ट है यार, आपको डर किस चीज का है? 500 रुपए की कंसल्टेशन का डर है क्या? इज इट हाउ इट इज? मिलो उनसे, जाके बात करो। अगर आप लिव इन में रह रहे हो, आपके पास, आपको लगता है कि दिस इज हाउ योर लाइफस्टाइल इज, उनसे मिलो, उनसे बात करो, वो आपको अच्छे अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव बताएंगे कि आपको कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव अब यूज करना चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड यू कैन प्लान थिंग्स दैट वे। अगर आप शादीशुदा भी हो, चलो मान लो आपका एक बच्चा है, आप सेक्स कर रहे हो अच्छा खासा, मान लो, वैसे तो लोग करते नहीं है, पर अगर मान लो कर रहे हैं, और आप तब भी आईपीएल टॉफी के जैसे नहीं ले सकते हो। आप अपना एक बच्चा करो। अगर आपको दूसरा नहीं करना है या कुछ टाइम बाद करना है, मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट, प्लान योर वे ऑफ रिप्रोडक्शन, आस्क देम, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आपसे बात करेंगी, बताएंगी यार कि आप ऐसे ले लो, ये दवाई ले लो, दिस इज बेटर, आप कॉपर्टी लगवा लो या मिरेना ले, कुछ भी। दे विल एडवाइज यू, दे आर द बेस्ट एडवाइजर। इंटरनेट पे प्लीज मत देखो, इंटरनेट नहीं है ठीक। गूगल बाबा नहीं बताएगा कुछ भी, गूगल बाबा के पास मत जाओ, आधी पौनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कितनी बार पता है हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। आईपिल तो आपने दूसरी बात बोल दी, एमटीपी पिल। प्रेगनेंसी को 4 वीक 5 वीक हो गए हैं, यंग लड़कियां हैं एंड दे आर टेकिंग दोज पिल्स, और बच्चे का जो रेजिड्यू वो पेट में रह गया, ठीक से निकला ही नहीं है, दे स्टार्ट ब्लीडिंग, दे डाई बिकॉज ऑफ दैट, और दे एंड अप इन सम कॉम्प्लिकेशंस। कितनी बार बोला गया है कि ऐसी चीजों में कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। मान लो आप यंग भी हो, कोई आपको खा नहीं जाएगा, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं खाएगी आपको, अपने पार्टनर के साथ जाओ, डिस्कस करो, प्रॉब्लम है, उस पर एक सोल्यूशन लो। और आईपीएल सोल्यूशन नहीं है अनवांटेड प्रेगनेंसी का। सेक्स एजुकेशन है, कॉन्डम है, एंड मेकिंग अ चॉइस कि अगर आप लिव इन रह रहे हो या फिर यू विल हैव अ लॉट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी विद योर पार्टनर, तो आपको क्या प्लान करना चाहिए, मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट। IPL is not a solution. It's a bad thing to take IPL every now and then. This is not going to fix anything. It is going to destroy that girl's body. और लड़कियों को अपने बारे में सोचना चाहिए ना। मान लो Yeah. लड़का नहीं सोच रहा है, तुम अपने बारे में सोचो, यू मीट द गायनेकोलॉजिस्ट, कोई आपको जज नहीं कर रहा है। आजकल तो गायनेकोलॉजिस्ट क्या, आजकल क्या, पहले से ही गायनेकोलॉजिस्ट तो बहुत ही ऐसे लोग हैं, वो ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट इन दिस एस्पेक्ट। तो आप मिलो उनसे तो दे विल टेल यू कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वील हेल्प यू आउट विद दिस। बट दे नीड टू डिस्कस ना, दे नीड टू टॉक अबाउट दिस। एंड आई थिंक ठीक है, इसमें पेरेंट्स का भी एक रोल है कि अब उन्हें पता है कि जनरेशन बदल रही है, चीजें बदल रही है, सेंचुरी बदल रही है, तो दे शुड टॉक अबाउट सेक्स टू दी यंग फीमेल्स, maybe tell them bad and good part about it, so that they don't end up in complications। तो ये यंग लड़कियां, उनको कुछ पता ही नहीं है ना, फिर वो तो जो मन चाह रहा है वो करती रहेंगे, एंड दे एंड अप इन प्रॉब्लम्स। तो इसमें Yes. पेरेंट्स, स्कूल, इट्स अ मल्टी लेवल अप्रोच, इट्स अ होलिस्टिकली अरेंज थिंग। स्कूल सेक्स एजुकेशन बता रहा है, पेरेंट्स मदर से क्लोज है, लड़की अपना डिस्कस कर रही है प्रॉब्लम्स। थर्ड, गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस कर रही है, इफ शी इज लिविंग सेपरेटली, शी इज इन अदर सिटी, शी इज अराउंड 22 23 एज, शी इज लिविंग विद अ पार्टनर, तो वो सब डिस्कशन हो रहे हैं। वो एक तरीका है इसको काम करने का। आईपीएल लेना, नॉट नॉट अ गुड। You know, First of all, thanks a lot for sharing these points out, because and one of the things I believe, if parents give that safe environment and approachability to the child, be it any gender, बिल्कुल। a lot of issues which
parents become aware at a very later stage when things have gone completely out of hands, हम्म could be sorted and resolved at the very nascent steps. And Brilliantly put together. पेरेंट्स के साथ अगर बच्चों का वो रिलेशन है तो ये बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट है यंग लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए ना। लड़कों की तो बात नहीं करते, लड़के तो अपने पेरेंट्स से कुछ डिस्कस नहीं करते, लड़कों के तो दोस्त होते हैं वो दोस्तों से बात करते हैं। तो यस, नहीं अब तो आपके पास यूरोलॉजिस्ट भी है, आप उनके पास जाके बात कर सकते हो। yes, और आप कोई भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है सेक्स के बारे में, एक तो ना लड़कों को भी है ना, आप सामने आके ईगो छोड़ के बात कर लेनी चाहिए कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम होती है, मुझे ये दिक्कत है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या मुझे सेक्सुअल में परफॉर्मेंस प्रॉब्लम है। गो टू योर यूरोलॉजिस्ट, डिस्कस विद देम। खा नहीं जाएंगे वो, आपसे बात करेंगे आपसे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है ये सोल्यूशन है, हम ये कर सकते हैं। तो so वो something एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। as a male, I would like to say friends हैं, but talk to a urologist, as Dr. Tanu is saying, because friends के पास भी ना वो limited information, I will not say और information, पूरा data सोल्यूशन नहीं data है। नहीं. राइट। They just have those, small bites of data that they've collected from porn or different sources of internet, अगेन, Instagram reels नॉन देखते हैं. रिलायबल। हाँ। Yes, non-reliable sources हैं. So मैं I don't डॉक्टर हूँ इसलिए डॉक्टर्स को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैं need डॉक्टर हूँ the इसलिए मैं necessity. जानती नहीं नहीं, मैं ऑडियंस के लिए बता रही हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं जानती हूँ कि डॉक्टर्स के बाद आपकी बात का सोल्यूशन है। आपको बात करनी पड़ेगी उनसे, खुल के बात करनी पड़ेगी ओपनली। यूरोलॉजिस्ट हो गए, गायनेकोलॉजिस्ट हो गए, सेक्सुअल हेल्थ डॉक्टर्स हो गए, साइकियाट्रिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, दे वांट टू डिस्कस विद यू। पर आपको बात तो करनी पड़ेगी ना। You would have to take the step. Let's discuss about menstruation, and we will also get onto PCOS. But I was just going through a study by Whisper, and with early onset of menstruation in girls, teenage girls these days, there are 26 million girls in alone in India who are at the risk of leaving school education altogether. अच्छा, ओके। So I got to know about this fact. There's this movement being done by Whisper where they're going to rural schools and educated young girls. अच्छा, As डोंट मिस द स्कूल, आई गेट इट। yes, yes, दैट इज yes, गोइंग ऑन, या आई गेट yeah. इट। So any message or any way for message from your end for the parents as well as any young girls who are listening to this, how can they navigate this? नेविगेशन बहुत सिंपल है इसका। देखो, मेंस्ट्रुएशन विल स्टार्ट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हाउ ह्यूमन बॉडी इज इवॉल्विंग, हाउ फीमेल्स आर गोइंग टू इवॉल्व, their एज एंड एवरीथिंग। mothers are a very important bond for it. they are the first one who will get to know. लड़की सबसे पहले अपनी मम्मी को ही बोलेगी कि मेरे को ये सब हो रहा है, और मम्मी कैन टेल बच्चे को ना कि एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। बच्चे को समझा माँ ही सकती है कि ना आप ऐसे ऐसे पैड लगाओ, स्कूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्कूल में एक दूसरी चीज शुरू होती है, टीचर्स। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के अंदर, जो उन बच्चियों को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है कि ये कोई बीमारी नहीं है। मतलब तुम्हारे अंदर से अगर थोड़ी स्मेल आ रही है, या तुम्हारे अंदर से अगर खून निकल रहा है, पैड पे लग रहा है, या हो सकता है तुम्हारे कपड़े भी खराब हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? कपड़े खराब हो सकते हैं भाई। उस बच्ची को सांत्वना दो। उस बच्ची को शुरू के दिनों में जब वो इस प्रोसेस से निकल रही है, ट्रांजिशन से निकल रही है, पेन भी है उसको, उस बच्चे को ना थोड़ा-सा समझाओ, उसका ध्यान रखो। मतलब अगर हो सकता है क्लास में उस पे दाग भी लग जाए, तो आपके पास चेंज ओवर एक ऑप्शन होना चाहिए हर स्कूल में ना। पेरेंट्स से लेके एक चेंज ओवर रख लो क्लास में, लॉकर के अंदर। पैड तो होने ही चाहिए लड़कियों के लिए, और चेंज ओवर करा दो ताकि उसको वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो उसके लिए। और दूसरी चीज़, ऐसे कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे डिस्कस होना चाहिए कि वो कितना स्पोर्ट्स खेल सकती हैं। आजकल तो पैड के अलावा कप भी होते हैं। आप कप इंसर्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन प्ले एनी स्पोर्ट्स। उसमें क्या होता है, आपको वो बार बार पैड नहीं चेंज करना पड़ेगा, आपको गीला गीला नहीं लगेगा, और सब इश्यूज नहीं आएंगे। तो मेंस्ट्रुएशन का जो शुरू का जो पार्ट है ना, एक तो माँ है सबसे इम्पोर्टेंट, जो मदर है वो बात करेंगी। दूसरी चीज, उस बच्ची का न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब वो लड़की मेंस्ट्रुएट करने वाली है, अब आयरन डिप्लीशन भी हो सकता है अगर ठीक से वो खाना नहीं खा रही है। वो बहुत जरूरी है कि आपको न्यूट्रिशनली उस बच्चे का बहुत ध्यान रखना है ताकि उसकी पढ़ाई में इफेक्ट ना हो। कितनी बार ऐसा होता है, हम बच्चों को बोलते हैं आप बुद्धू हो, आपको पढ़ाई नहीं आपको कुछ याद नहीं होता। टीचर्स भी उनको ऐसा बोल देते हैं। अरे बच्चे का डीप लेवल पे जाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? क्या पता उसको अनीमिया हो गया है, मतलब उसकी हीमोग्लोबिन कम हो गई है, आयरन कम है, उसको कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही है पढ़ाई में बेचारी, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे डीप लेवल कॉन्वर्सेशन का वेरी इंपॉर्टेंट अवेयरनेस के लिए। तीसरा, तो टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर टीचर उसको स्कूल में समझा देना कि बेटा कोई बात नहीं, अगर दाग लग जाए तो मुझे बता देना, आपको वॉशरूम जाना है, उनको थोड़ा सा अश्योरेंस दे दो, थोड़ा सा सांत्वना दे दो कि अगर पेट में दर्द हो रहा है तो मेडिकल रूम बना हुआ है। ये तो मस्ट है ना, स्कूल के अंदर मेडिकल रूम होना चाहिए, क्लीन वॉशरूम होना चाहिए, उनके चेंज ओवर होना चाहिए। ये तो इतना तो मिनिमम होना चाहिए स्कूल के अंदर, जहां पर एटलीस्ट वो लड़कियां कॉन्फिडेंट फील कर सके कि चलो स्कूल मिस करने की जरूरत नहीं है, स्कूल चले जाएंगे, वहां पे हमारे कपड़े भी रखे हैं, हमारे लिए पैड भी रखा है, वॉशरूम भी ठीक है, और मेडिकल रूम भी, अगर मुझे पेट में दर्द हुआ तो मैं दवाई खा के आराम से लेट सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं एटलीस्ट जितना मैं अटेंड कर सकती हूँ मैं करूँ। दूसरी चीज, अगर आपका स्पोर्ट्स वगैरह कुछ चल रहा है तो कप्स भी आते हैं अब तो, कप्स इंसर्ट करो। इवन यू यू हैव दीज वेरी अमेजिंग, आई एम forgetting the name right now, I don't know why. You get these threads that you can put it Tampons, inside. हाँ, हाँ, tampons, I guess. हाँ, sorry, I just forgot. Tampons are very good part of it. So you can insert a tampon and you can play around आराम से, आप अपना कितना भी स्पोर्ट्स खेलो, कुछ भी करो। तो अभी तो बहुत ऑप्शंस है बस, लेकिन हाँ, डिस्कस करनी चाहिए, बात करनी चाहिए उस बारे में। और मुझे तो ये बिल्कुल, मतलब मैं तो कहती हूँ हार्ड एंड फास्ट रूल बना लो। अगर लड़कियां मेंस्ट्रुएट कर रही हैं तो सबसे पहले उनका हीमोग्लोबिन चेक करा दो व्हेन दे स्टार्ट डूइंग इट, एंड देन एवरी 6 मंथ लेट्स रिपीट इट। लड़कियां इतना ज्यादा अनीमिया में है ना इस देश के अंदर, बहुत ही बुरी हालत में। फीमेल्स आर इन अ वेरी बैड स्टेट रिगार्डिंग देयर हीमोग्लोबिन। खून की कमी इतनी ज्यादा है, क्योंकि ये इतनी बेसिक चीजें नहीं होती ना हमसे कि हम उन बच्चों को टेस्ट करा लें। अब बच्ची मेंस्ट्रुएट कर रही है तो 6 महीने बाद दोबारा करा लें। हो सकता है ना, अब वो मेंस्ट्रुएट कर रही है, न्यूट्रिशन इतना दे नहीं रहे हम पहले जितना, और कम कर लिया लड़की ने, तो वो और कमजोर हो गई। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए। And how can these conversations around menstruation be made easy for the boys out there, the young boys? या ऑफ कोर्स। Can mothers or fathers, educate the boys to be a support for their sisters out there rather than just, For their be. friends out there, there are friends in the school. Yeah. Yes. So, how can those conversations be initiated by parents and schools to even make the male part of the society more friendly? It should not be a secret that girls are having within them. If you आई are having, थिंक इट इज स्टार्टिंग विद द स्कूल। स्कूल में ओपन पोडियम कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ डिबेट भी होना चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ, और बच्चों को बोलना चाहिए हमें कि हमने आपको कुछ पोडियम पे सिखाया था, लेट्स स्टैंड देयर एंड स्पीक अबाउट इट। मतलब अगर तुम इतना कर पाओ ना, पोडियम तक खड़ा कर दो, एक बच्चे को कॉन्फिडेंस दे दो उसके बारे में बात करने का। एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, एक पूरा क्लास को, दे शुड हैव अ डिस्कशन ऑल अराउंड इट। लड़कियां आके पोडियम पे बोले कि मेरा मेंस्ट्रुअल डे 1 कैसा रहा, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई। तभी तो लड़के समझेंगे उनकी पेन को, उनकी प्रॉब्लम को डे 1 से। ये स्कूल में हो सकता है, घर पे तो हो ही सकता है कि जो मेल काउंटर पार्ट है घर में, या फीमेल काउंटर, जैसे मेरा बेटा है, अब मैं उसको बोलती हूँ कि रुद्र, एक वो जब 5th स्टैंडर्ड में आ जाए कि देखो आपकी फ्रेंड को ये हो रहा है, यू शुड सपोर्ट हर। मजाक नहीं उड़ाना है उसका। कोई भी देखो, सबसे ज्यादा लड़कियां बुली होती हैं इस चीज को लेके, और लड़के बहुत बुली करते हैं, दे मेक अ ग्रुप आउट ऑफ इट। इसका एक ही तरीका है, जब इसको आप ओपनली बात करना शुरू कर दो, पोडियम पे एक बिल्कुल प्रॉपर ऑडिटोरियम है, या वहां पे कोई एक तरीका है। एक इन्होंने ना महीने में 2 ऐसे सेशन रख लिए, बच्चों को बिठा लिया, उस पे बात करें कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे हम बात कर रहे हैं, और टॉपिक्स ले लिए, क्यूएज ले लिए बच्चों के। फिर एक लड़की या 2 लड़कियों को बोला, या लड़कों को बोला, मैं तो कहती हूँ लड़कों को बोला कि जाओ, देयर अ डिबेट ऑन इट, देयर अ एसे ऑन इट, से फ्यू लाइंस ऑन इट। घर पे होम एंगेजमेंट दे दिया रिगार्डिंग दिस। होम एंगेजमेंट देंगे तो पेरेंट्स को भी बात करनी पड़ेगी, है ना, तो ये एक अच्छा सर्कल बन जाएगा। होम एंगेजमेंट में मिल गया, घर पे बात हो रही है, स्कूल में भी बात हो रही है, तो ये टैबू जो है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर लड़के और लड़कियां आपस में भी एटलीस्ट इस बारे में बात कर पाएंगे, ताकि हस्बैंड वाइफ भी आपस में बात कर पाते हैं, जैसे या रिलेशनशिप में अगर आप 2 लोग हैं तो बात कर पाते हैं। yeah. एक रिस्पेक्ट जनरेट हो जाएगी इसको लेके। बॉयज विल बी एबल टू पैम्पर दोज गर्ल्स ऑल्सो दैट टाइम पे कि यार शी इज नॉट ओके, वी शुड नॉट इरिटेट हर। उल्टा पता है लड़के क्या करते हैं, मैंने तो आजकल आजकल क्या बहुत सालों से देख रही हूँ, शी इज पीएमएसिंग। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम चल रहा है इसको, तो इसका मूड खराब है ना, मतलब पक्का मेंस्ट्रुएशन शुरू है, जैसे पागल हो गई है ये। तो That मतलब time. वो एक तरह का वो जोक शुरू हो जाता है। ठीक है, दैट जोक इज नॉट अ बैड आइडिया, बट आई थिंक गुड आइडिया इज टू एक्नॉलेज इट, टू टॉक टू द वुमेन अराउंड इट। अगर आप लड़कियों से बात करोगे ना, दे फील वेरी मच कंफर्टेबल, दे वुड वांट टू टॉक, और मुझे लगता है लड़कों की इज्जत और बढ़ जाएगी।
अगर मुझसे कोई लड़का इस बारे में बात करेगा तो मैं तो उसको बहुत रिस्पेक्ट करने लगूंगी, वाओ दैट मैन इज बॉट अप सो वेल। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ जॉइंट इफेक्ट कि स्कूल वालों ने होम एंगेजमेंट दिया, घर वालों ने भी उसमें काम किया, स्कूल वालों ने एक पीरियड रखा महीने में 2 दिन जिसके बारे में सिर्फ मेंस्ट्रुअल के बारे में बात करी। उसमें न्यूट्रिशन की बात होनी चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट को इनवाइट करो, गायनेकोलॉजिस्ट को इनवाइट करो, 2 लोग मस्ट होने चाहिए जो वहां बैठे हों और वो डिस्कस कर रहे हों कि बच्चों से ये सब चीजें, गायनेकोलॉजिस्ट पूछ रही हो, न्यूट्रिशनिस्ट पूछ रही हो कि बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, आई थिंक इससे ना एक healthy society will begin. I totally agree. I totally agree. And I believe the overall outcome of any topic that we have, discussed today is discussion. The conversation, the communication needs to be started. Yes, true that. I would totally agree. A very, very good discussion we had on various topics which are actually needed right now. और I, अगर आप और मैं डिस्कस करते हैं, लोग सुनते हैं और उस पे कुछ भी अगर लोग एक्शन लेते हैं या स्कूल्स एक्शन लेते हैं या विमेन फॉर देमसेल्व्स दे टेक एक्शन, बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है। या हमारे कॉन्वर्सेशन को सुन के रिलेशनशिप इश्यूज लोगों के कम हो जाते हैं, या जो लोग रिलेशनशिप में अभी आए नहीं है, आने वाले हैं, उनको पता लग जाए कि यार इतना तो मस्ट है, ये तो करना ही चाहिए। या जो लोग अभी शादी करने वाले हैं या शादी कर रहे हैं इस ईयर में, उनका कोर्टशिप पीरियड चल रहा है, तो उनको रेड और ग्रीन फ्लैग समझ में आ जाए, देन इट्स अ विन विन सिचुएशन। one final thing I would like to ask you, Dr. Tanu, is around, again, not getting into the, joke part of it, but या the mood swings often are because of the hormonal imbalance. इट इज सो ट्रू, And I agree that एंड conversation. मेंटल इम्बैलेंस आल्सो। Yes, I was coming on majorly on that part as well, because while we are talking about any young women who is going through menstruation, or if we talk about even women above the age of 40 who have gone through the menopause, for them, mood swings is one of the major issues that they have to battle often alone. And while they're going through the mood swings, it becomes also a point of fights between the couples. Male सबसे counterpart. ज्यादा डिवोर्स 35-40 में क्यों हो रहे हैं? There's a huge conversation on that. मेनोपॉज के टाइम बहुत डिवोर्स होते हैं, बहुत डिवोर्स होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं, Yes, so क्योंकि एक instead of, विमेन की भागती हुई बॉडी स्लो हो जाती है, और वो भागती हुई बॉडी जब स्लो होती है तो विमेन को एक्सेप्टेंस किसी को भी नहीं होगी। शी फील्स obviously, कंफ्यूज्ड कि ये क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, व्हाई एम आई yes, फीलिंग ड्राई डाउन देयर, व्हाई एम आई फीलिंग हॉट हेयर, व्हाई माय ब्रेन इज फॉग्ड अप देयर। ये सब चीजें चल रही होती है बेचारी के साथ, कोई समझ पाता नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई अवेयरनेस नहीं है ना। मैं तो कहती हूँ कि मेनोपॉज के ऊपर टीवी में वेब सीरीज पता नहीं क्या क्या बन रही है, क्या क्या टॉपिक पे बन रही है, क्या इस टॉपिक पे नहीं बन सकती? कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाई नॉट पीपल वॉच थिंग्स ऑन हेल्थ। ऐसी टॉपिक पे वेब सीरीज बनाओ ना जहाँ मेनोपॉज के बारे में बात की जाए, ताकि मेन को पता तो चले विमेन क्या क्या झेल रही है उस टाइम पे, और वो शायद उसकी हेल्प कर पाए, रिगार्डलेस ऑफ दैट कि वो बोले यार तुम तो हमेशा ही गंदे मूड में रहती हो, तुम तो ऐसी ही हो, तुम तो ऐसी होती जा रही हो। अगर उन्हें पता चले कि विमेन इतने बड़े ट्रांजिशन से निकल रही है, उसकी पूरी बॉडी ही बदल रही है, जो बॉडी उसको सुंदर लगती थी अब उसको समझ नहीं आ रही है, सुबह उठी तो कुछ वेट था, रात में कुछ और वेट हो रहा है, चेहरा पूरा लाल हो गया है, नीचे वजाइना पूरी ड्राई पड़ी हुई है, सेक्स भी अच्छा नहीं लग रहा, इतनी सारी चीजें बेचारी वो झेल रही है इन द ब्रेन, राइट राइट, इन द करियर ऑल्सो। ठीक yeah, है, करियर में भी क्योंकि एकदम से ना आपकी बॉडी विल नॉट बी एबल टू कंपैटिबल फॉर ऑल दैट, तो मतलब वहां वो हेल्प तो कर नहीं पा रहे उनकी, और बुराई कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ना एक्चुअली में मेनोपॉज होता क्या है, प्री मेनोपॉजली वुमेन क्या ट्रांजिशन से गुजर गुजर रही है। तो अगर इसके बारे में बात करी जाए तो इजी हो जाएगी 2 लोगों की लाइफ। दैट इज व्हाट आई वांट टू से इन दिस रिस्पेक्ट, कि अवेयरनेस क्रिएट करने के तरीके बहुत है, लोग सुनना चाहते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, सुनाने वाला कैसे सुना रहा है, बोरिंग तो मत करो उसको, आई थिंक इंटरेस्टिंग बनाओ, सो दैट पीपल वांट टू लिसन व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल देम। एंड वेब सीरीज इतनी सारी चीजों पे होती है, इस पे जरूर होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। विमेन लाइफ में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनार्की, जब दे स्टार्ट विद देयर मेंस्ट्रुएशन, एंड मेनोपॉज। तो प्री मेनोपॉज से मेनोपॉज तक वो किस चीज से लड़ रही है वो बहुत जरूरी है दिखाना, मूवी वेब सीरीज व्हाटएवर वेट, बिकॉज आजकल लोग तो सिर्फ एंटरटेनमेंट से ही समझते हैं, वहीं से मैसेज जाता है, बहुत सारे मैसेज वहीं से गए हैं।
Agreed, agreed. Movies and web Yes. series have their own very unique way of driving that They message. have a big way, I'm telling you. विमेन हेल्थ के ऊपर जितना भी अभी तक मेंटल पे काम हुआ है वो सारा टीवी से बहुत कुछ हुआ है। Yes, yes, yes. और इवन विमेन भी विल फील वेरी एक्नॉलेज ना अबाउट दैट कि हमारे बारे में बात की जा रही है इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि उनकी स्किन खराब हो रही है उस टाइम पे, बाल खराब हो रहे हैं, बट शी इज गोइंग थ्रू अ मेजर चेंज इन लाइफ। इसलिए मैं कहती हूँ 35 जब हो जाओ ना, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ अ लॉट। जितना 25 में कर रहे थे ना 35 में डबल करो। सप्लीमेंट्स पे, अपने न्यूट्रिशनल पे, अपनी हैबिट्स पे। ऐसा नहीं आप 35 के हो गए और सोच रहे हो कि अब वर्कआउट छोड़ दिया। जैसे 45 के हो गए घुटने खत्म हो जाएंगे, फिर करके देखना वर्कआउट, कुछ वर्कआउट नहीं होगा, बैक खत्म, घुटने खत्म, फिर तो बॉडी इतना जवाब दे देगी, फिर कुछ नहीं होगा। 35 पे काम करना शुरू करोगे ना तो 45 आपको थैंक यू बोलेगा। जब आप 35 पे काम करोगे, न्यूट्रिशन पे, अपनी डाइट पे, अपने लाइफस्टाइल पे, अपने फिटनेस पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे भी, मतलब सेक्सुअल मेंटल हेल्थ पे, तो 45 आपको थैंक यू बोलेगा। यू लुक वेरी हॉट, यू लुक वेरी फिट, यू विल बी न्यूट्रिशनली गुड, और ये सारे घुटने उठने के दर्द भी नहीं होंगे। No, I totally agree. And somewhere or the other, I would say instead of 35, that should start as a lifestyle habit, probably at the age of 20 even. That should नहीं, start. मतलब मैंने देखा है 20-25 में टिल 30 तक लड़कियां बहुत अच्छा फिटनेस 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 करती रहती हैं। जैसे ही दे रीच टू अ पॉइंट, अब एंटरप्रेन्योर बन गई हैं, अब जॉब भी चल रही है, अब बच्चा भी हो गया है, शादी भी हो गई है, वो पीक आ रहा है ना उनका, बच्चा बच्चा सब होने का, तो फिर सब भूल जाती है। तो मैं कहती हूँ कि जितना 20-25-30 पे करे तो उसका डबल करो 35 पे, बार बढ़ा दो अपना, क्योंकि अब Yes. एक्चुअली ज्यादा जरूरत है चीजों की। Yeah. अब आपकी Agreed. बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होना ही होना है। अब 5 साल बाद डायबिटीज थायराइड सब आ जाएगा आपकी बॉडी में। Yep. And with the lifestyle and the, other provisions we have today in the urban areas, uh, the air is polluted, the food is polluted, the water is polluted. Mm, प्लास्टिक एवरीवेयर, तभी तो yes. इनफर्टिलिटी है, तभी तो इतनी सारी बीमारियां हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है, अच्छा खाना, फिटनेस, गुड सेक्सुअल लाइफ इज इक्वल टू मेंटल हेल्थ। दैट इज हाउ यू गोइंग टू एक्चुअली मेक मनी। बीमार रहोगे तो क्या पैसे बनाओगे, या Agreed. मेंटली बीमार हो तो भी पैसे का क्या करोगे। तो आई थिंक न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सप्लीमेंट्स लेने बहुत जरूरी हो जाएंगे, क्योंकि अब पहले वाली लाइफ नहीं है। प्लास्टिक से भरी हुई है दुनिया, पोल्यूशन भरा हुआ है, सप्लीमेंट नहीं लोगे तो बॉडी बहुत वीक हो जाएगी। आधी चीजें तो आपको मिलती नहीं है अपने न्यूट्रिशन में। मैग्नीशियम नहीं मिलता आपको, विटामिन सी नहीं मिलता इनफ आपको, जिंक इनफ नहीं मिलता आपको, एंटीऑक्सीडेंट इनफ नहीं मिलते, तो वो तो बॉडी को चाहिए ना, लेने तो पड़ेंगे। Thanks a lot, Dr. Tanu, for today's insightful conversation. There are My many pleasure. questions. I would love to do a second episode as well with you. ऑफ कोर्स आई And थिंक इसको एक अच्छी सीरीज बनाते हैं, इसमें लोगों को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। क्योंकि अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे आप 30 के बाद काम करना शुरू कर दो ना, अगर नहीं भी किया है, तो 40 पे डायबिटीज तो नहीं होगी, बट काम करना पड़ेगा उस पर आपको। obviously, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग कॉर्पोरेट में बहुत सारी इवेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल और फिटनेस पे बात करने वाले हैं। आई एम मेकिंग अ टीम, my team and me will address these things in all the corporate sectors. So anyone who wants to collaborate, anyone who wants a corporate event, we're open to it, where we are trying to tell them good things about how they can improve their life. uh, While earning so much money, why not have a good life even? you're earning so much money for a good life. हाँ, या ऑफ कोर्स, क्यों ही पैसे कमा रहे हैं अगर अच्छी लाइफ नहीं है, अच्छी बॉडी नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, बॉडी नहीं है, तो क्यों कमा रहे हो? Agree. है ना, कुछ तो एंजॉय करना है ना बॉडी को, लाइफ को, तो उसका एक संतुलन तो बनाना पड़ेगा ना, उसके बारे में सोचना तो पड़ेगा। Listeners, if you have any questions, we will be leaving Dr. Tanu's contact details in the description below, श्योर। in whichever platform on whichever platform you're listening to this podcast. And remember, We Are Listening is an anonymous mental health initiative as well. So if you are going through any issue, be it through your sexual health or any other emotional health issues, feel free to share it with us on our forum. You can share it anonymously. That's the main idea. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। And on our Facebook page, doctors would be reverting to your queries, where again, it's on an anonymous thread. Thank you, and please stay Thank you tuned. so much, Pulkit. You have got a very good channel. You're doing a lot for the society. It's going to add a lot of value. And I'm sure with time,
वी विल सी अ वेरी गुड चेंज इन द सोसाइटी। हमारा इंडिया डायबिटीज से जरूर फ्री होगा, इनफर्टिलिटी से फ्री होगा। यहाँ पे सेक्सुअल हेल्थ के बारे में लोग बात भी करेंगे, एंड पीपल विल बी मोर एंड मोर fitter and better, and things will be much better, I'm sure. Thanks a lot, Dr. Tanu, and listeners, please stay tuned. Thank Thank you. you.